Ja, ich habe mir gesagt, kein Problem, ich werde das schaffen. So, zuerst. Als erstes, first point, generally we take pronunciation, also reading, rules of reading. फटाफट आपको मैं I will write here some 20 rules maybe, and I will ask you to read them. Okay? Also das ist eigentlich sehr wichtig. It's most important in the beginning at least. So you already know, but I will just go through. Most important at least. For example, das ist A, das ist auch A. Ei, das ist auch Ei. So these two are similar. We'll take in brief, but we must know how to read. Das ist A here, das ist Ei. Then E, E. So first two are similar in sound, second two are similar in sound, and third two are similar in sound. Same होगा ये. Then there is this pair, again similar in sound. This is oi. Same oi. This sound oi. So if I write here, what is this? Noi. 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 What is this? Boy me. Boy me. This is boim. This is boim. Boy. And this one is Boy. 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 Yes. So this is boy. This is noi. It means E U, that is A U Noi. is noi, and these two are similar in sound. Here, what is this? Perfect. Musik. Okay. Mathematic. So H is generally silent in the middle. Okay. So we'll read mathematic. Mate. If I write only this one, this is Mate. 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 Gyote. Institute. It is institute. And this is Goethe Institute. okay. So generally H is silent in the middle. So maybe you can read it Goethe. Goethe. Why yo? Because O umlaut is yo. Either you will read yo or yo. And this is equal to, you can write like this one or O and E. So it is same. So gyo. Huh? This is yo only. So gyo. Gyo. Goethe. Goethe. Goethe Institute. नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ मैं, आप देखो आपको गोएथे नहीं बोलने दे रहे हैं ना. You can continue with Goethe also, but generally H in the middle is then silent. So Goethe, Goethe Institute. So 4 rules we have taken here. A und Doppel A sind gleich.
मतलब A and double A are same, so that's why this is Har. 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 Par, par, har. Ana. Ana. Ana, ana. Okay. Nouns. My. 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 EI is I. My. 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 Means the sound is same. Okay. So, yeah. Klar. Next. You already know. I am just revising so that everyone is on the same platform. Then we will take this one. This is A. A. Also A. If it comes at the end, it is a. ER, un, ul. So these combinations you will see again and again with ERENEL. So this is Emil. Emil. A. Tay. Mate. 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 Because H in the middle will be silent Yeah. and E at the end will be a. So mate. Mathematic. Mate. ट का साउंड आएगा, थ का नहीं आएगा, अ. But this will be a at the end. It is not a, it is a, and that's why you say Mache. mache. Is mache du machst? Mache. Mache. That's why it is a. Mache. Sage. Sage. Yeah. Habe. Yes, correct. So E at the end is a. Mate, te, Emil, un, ul. For example, ER at the end is and only R at the end is also R. So ER is R at the end and single R is also R. For example, suppose this is the word. Not to now. What is this? No. Nu R. Nur. This is nu R. Nu R. You can't say nur. Okay? This is nu R. Nu R. R at the end is R. For example, this one. Natur. Natu R. Yes. R alone is R. So natu R. Natu R. Nu R. And ER is also R. So for example, Lerer. H is silent in the middle. Yeah. H is silent in the middle, so it is Lerer. Layer. For example, in Hindi I will write Lerer. I will write like this. Lerer. Lerer. H is silent. Layer and र के साथ र लग गया तो लेरर ही हो गया ये सीधा लेरर. And suppose this is Lererin. Perfect. Very good. Lererin.
There. There. So H is silent here also because in the middle. There. There. Perfect. So this was a at the end or on. The same example maybe I can take here. Makhan. Right? Makhan. So CH is kh, CH is sh. And that's why you are reading it makhan. Kh, why kh? Because before CH, if A, O, U is there, then CH is kh. CH is kh if before CH, A, O, U. Then only it will be kh, otherwise it will be sh. Other than this, maybe sometimes you will see CHS that will be. If it is SCH, again sh. If it is PSCH, it will be ch, and if it is DSCH, it will be z. So these are the different combinations of CH. ये कहीं ना कहीं हमको दिखेंगे. So better we should see in advance what possibilities are there. So ये different combinations E के दिखेंगे, कभी अकेला दिखेगा, कभी दोनों दिखेंगे साथ में. Sometimes E at the end, sometimes in the combination with ER, EN, EL. So different combinations of E, and here different combinations of CH. And that's why we read yes, Zex. Why Z? Because S is Z. If after S any vowel is there, we have 8 vowels in German. You already know: A, E, O, U, E, Yo, and U. So all 8 vowels. Any of these vowels, इनमें से कोई सा भी S के बाद में आ गया तो S खुद ज बन जाएगा. Z. What is this? Zigger. 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 Yes. Zigger. Zigger. After S vowel is there. That's why. And I E is E. S खुद J बन गया. So it is Z. You already know this is Z only. Z. Zigger. Zigger. So after S, if vowel is there, then S is Z. Otherwise, normally S is S. If we have double S, एक साथ अगर double S आएगा, it will be always S only. चाहे वो ऐसे आ जाए, it is also equal to double S. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसमें से जे ये अलग अलग नहीं होगा. इट विल बी ऑलवेज सिंपल से. डबल एस के बाद कोई भी वोवल आ गया तो भी सही, तो भी ये सही रहेगा. डबल एस के बाद में कोई वोवल आ गया तो भी ये सही रहेगा. डबल एस इस रूल में कवर नहीं है. एस के बाद में वोवल आएगा, एस बिकम्स ज. और एस के बाद में वोवल अगर नहीं आएगा, इट विल बी से. फॉर एग्जांपल ग्लास. और यहाँ पे जिगर. एंड दिस वन फूस. बट है से ये जे नहीं है. इसके आगे कुछ और लगा भी दूंगा तो भी ये सही रहेगा. ओके. CH के कॉम्बिनेशंस यू नो. चूज. DSCH के बहुत कम दिखेंगे आपको. DSCH के बहुत ही कम दिखेंगे. मान लो कोई लिखे खाटू श्याम जी, रामदेव जी, जे लिखोगे तो जरूरत पड़ेगी. तो कोई लेकिन जंगल, जैसे मान लो जंगल अगर जर्मन्स लिखते हैं तो वो DSCH लिखते हैं. ठीक है. सो बट वी शुड नो दैट हाउ टू रीड इफ दिस इज द कॉम्बिनेशन टुगेदर. फिर इसमें CH नहीं देखेंगे. CH से पहले क्या आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट. सो पहले दोनों इसमें कवर हुए. एंड इफ CH S इज देयर देन इट इज इनवैलिड. फिर ये नहीं देखेंगे
CHS आ गया तो फिर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस Fuchs. Fuchs. Because CHS is x. Fuchs. Jex. Jex and Fuchs. CHS is there. And SCH also very very popular. For example, Schule. Schule. Yes. And again E at the end. Okay. Here. E at the end is a. So here Schule. Chow choose is chat. Next. उबासी नहीं लेगा कोई? मुझे उबासी की आवाज आई है? ये अलाउ नहीं है क्लास में। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्या है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्स्ट्रा लगती है तो वो आंख से नहीं जाती। मैं समझ सकता हूँ क्यों आती है उबासी। इंफॉर्मेशन कई बार ज्यादा होती है तो वो आंख से नहीं जा पा रही, वो कानों से भी नहीं जा रही, लेकिन लेना है अंदर तो आदमी मुंह खोल लेता है उसको अंदर लेने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आपकी उबासी ऐसी स्थिति में मुझे सुननी नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं तो मुझे लगेगा कि बोर हो रहे हो आप। ओके, सो डी इज ड एंड डी इज ऑल्सो ट। मैं फास्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको A1 वाली चीज नहीं लगे कि ये पूरी क्लास इसी में ले ली, बट एक बार पता सबको होना चाहिए ताकि मैं पूछूं तो कह सकूं बताया था ना पहली क्लास में। ये भी एक स्ट्रेटेजी है मेरी कि बताया था ना, फिर क्यों नहीं आता, तो फिर से टॉक सकता हूं आपको। डी इज ड एंड डी एट द एंड इज ट, एंड दैट्स व्हाई, बट ये ट भी हल्का सा। व्हाट इज दिस? किंट। Disco. Yes. Kint. Hund. Hunt. हल्का सा टय है, उसको पूरा टय भी बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। Hunt. Kint. Hunt. Okay. But at the end, अगर मान लो यहाँ पे मैं ए और लगा दूं तो किंडा वो किंडा हो जाएगा, फिर डर रहेगा वो, then it is not ट। For example, what is this? Kundal. Yes, correct. Z is normally g, Z at the end is k, but if ig is there then it is ish at the end. What is this? Good. Yes, good. Guten. Un. En is un, so guten. Tak. The sound is like tak. Guten Tag. Okay, so Z at the end is k. Tak. Mark. Suk. Yes, suk. क का साउंड आएगा थोड़ा सा। सुक। मुटिश। IG is मुटिश। क्योनिश। Now it is not share. Kyonigin. Because it is ish only if IG is at the end. अब यहाँ पे तो end में है ही नहीं IG, उसके भी बाद में कुछ और आ गया, means G becomes again g.
जी वापस से ग बन जाएगा। सो क्योनिगिन, क्योनिगिन, क्लार। ओके, एच we have already taken. H is normally है, as a alphabet it is ha। देखो ये जो भी हम लोग रीडिंग के रूल कर रहे हैं वो अल्फाबेट तो डिफरेंट होता है, बट रीड कर कैसे करते हैं टेक्स्ट में। अल्फाबेट में तो फॉर एग्जांपल दिस इज बे, दिस इज डे एंड जी इज गे। एज ए अल्फाबेट they are like this, but when we use them in words, हम लोग इनको वर्ड्स में यूज करते हैं तो इनकी मात्रा से बढ़ जाती है। इट बिकम्स न्यूट्रल, इट बिकम्स ग, ड, ब, बिकॉज मात्रा जो डिसाइड होती है वो वोवल्स करते हैं। वोवल्स का राइट है वो वोवल्स। तो सपोज मान लो ये वर्ड है तो इसको गे थोड़ी पढ़ते हैं, इसको सिंपल ग पढ़ते हैं और फिर मात्रा ये लगाएगा अपने हिसाब से, गु, ट, गुड। ये डे है लेकिन मान लो इसको डे आ थोड़ी पढ़ेंगे, इसको सीधे पढ़ेंगे डा, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो तो ऑलरेडी गायब हो चुकी वर्ड में आते ही, और फिर मात्रा जो है वोवल डिसाइड करता है। सो दिस इज डा। फॉर एग्जांपल दिस वन इज बापू। ये बे की तो मात्रा हट चुकी, ब हो गया आ, बा, प, उ, बापू। यस, सो एच इज है। एज ए अल्फाबेट इट वाज हा, एज ए अल्फाबेट तो ये था लेकिन मात्रा तो हट गई। नाउ इट इज है ओनली। एंड एच इज साइलेंट नॉर्मली इन द मिडल। फॉर एग्जाम्पल वोन, वोन, साइलेंट ये एच, वोन। एच नॉर्मली है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन हार। एच इन द मिडल इज साइलेंट लाइक वोन। लेकिन आपको कभी कभी इंटरेस्टिंग लगेगा कि एच को वापस आवाज आ जाती है अगर इसके दोनों तरफ वोवल हो। गेहन, इसको गेहन बोलते हैं। जब एच के दोनों तरफ वोवल हो तो उसको वापस से है पढ़ देते हैं। जो हो सकता है कई लोग इसको गेहन भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको गेहन भी पढ़ सकते हैं लोग, गेहन वो चलेगा। दोनों तरफ वोवल होता है तो अक्सर जर्मन इसको गेहन भी पढ़ देते हैं, गेन भी पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टेंशन में मत आ जाना ये सब देख के। So, this jetzt haben wir G. Next. I haben wir schon genommen. Simple. K and this is year. या जा तो नहीं बोल दोगे किसी को, जा या जानू तो नहीं है, जानू नहीं बोलना। जानवर किसको बोला तुमने? यानुआर, Januar. Yes. Okay. So ka is ka. L, M, N only base sound remains. L का केवल ल sound करेगा, ल, म. Although it is M, L, N, but इसका base sound ल, म, न. ला? So, O is simple O, P is pa,
R we have already taken. S we have taken. U. Okay, it's done here. This is U. This is so as a alphabet it is FOW, but in word will you read fa only. Party. Fati, fati, fati. Father. Fater. Father. Yeah. This is way. Way. As alphabet it is way, but in the word मात्रा गायब होगी. Word में आया तो. So this is Warum. Warum. Yes, Warum. And this is as alphabet it is Epsilon. But in the E. word it is just E. E. System. System. Sys. E है ना ये तो. और E है और वोवल है नहीं, तो ये G तो बन नहीं सकता, जिस तो हो नहीं सकता. So ये सिस हो गया ये. System. System. AM is M. So system. Klar. Then umlaut ones. These special characters of German language we already know. This is ye, yo, दोनों तरीके से पढ़ते हैं इसको. You. So for example, this is erger. Yes, erger. कोई येरगर भी बोले तो चलेगा. येरगर और erger. Both is fine. Yol और yol दोनों तरीके से चलेगा ये. Uber और Uber. Yeah. This is the rule. And but before umlaut word, if there is some consonant, that consonant becomes half. For example, ये तो यो है, लेकिन सपोज इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो ओरिजिनली ये मैं होता है, लेकिन अगर इसके बाद में वोवल आ रहा है, इट विल बी देन म्योगन. So before umlaut, if some consonant is there, it becomes half myogen. Kyonen. Correct. It is musen. And double S remains se. Musen. Z नहीं बना है. Musen. Mu. So before a consonant means after consonant vowel, और वो भी स्पेशली umlaut वाला vowel, तो वो खुद consonant half हो जाएगा. This is the rule. Half का rule. And another half का rule जो कौन सा है, वो है अगर डबल कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए कभी, जैसे इसमें आ गया था, इसीलिए मैंने इसको नन किया, क्यों नन, डबल एन आ गया. So like this, if double consonant is there, it becomes also half, kyonen. For example, the same example. Or this one, double T. Middle. Like this. So this guy is half, middle, kyonen. Or for example, double N. Man.
Man. This N is half only because double consonant, here also double consonant. So double N is also double consonant. So double consonant becomes half. And जो umlaut है उससे पहले consonant आया तो भी half. ये half का रूल है. Let's take Z. That is the sound is like आदत है और से. What is this? सुख. पेट अंदर जा रहा है ना, सुख. ओके, आदत है और से. सुख. वस और वत्स में फर्क है ना. वस तुमको वस में कर नहीं, वस में तो नहीं कर पाऊंगा. वत्स तो अलग है ना और वस अलग है. तो पेट अंदर जा रहा है तो सही आ रही है साउंड, ये मान लो आप. वत्स. सो दैट इज सुख. ऊंचा आएंगे. ओके, सो दीज आर सम बेसिक रूल्स. ये 100% हो गए ऐसा नहीं है. कोई चीजें मेरे को क्लास में पढ़ाते टाइम पे याद आएंगी ना, सो मैं आपको बताऊंगा फिर. बट ज्यादातर यही है रूल. immer wieder finden Sie diese Gleise. ज्यादातर यही आने वाले हैं. सो जो भी मैंने अभी बताया है इसको एक बार वापस देखना है आपको. हर एक क्लास का वीडियो ग्रुप में आता है तो वहां भी देख सकते हो आप. सो द बेसिक रीडिंग रूल्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है. मान लो A1 में किसी ने सही से नहीं पढ़ी, 19-20 भी पढ़ दी तो लोग बुरा नहीं मानते. लेकिन कोई देखे कि A2 में आ गया अभी भी यही कर रहा है और A2 करा हुआ फिर B1 में भी तो जाने की पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी क्या, पक्का ही जाता है. राइट, ढंग से पढ़े तो पक्का ही जाता है. सो फिर भी अगर मान लो गड़बड़ पड़े तो आपने A1 जहां से भी किया होगा, लेकिन अब आप मेरे पास आ गए तो मेरी थूथू होगी क्योंकि आगे तो उनको लगेगा इसी से पढ़ के आ रहा है. तो ये जो भी रूल है बेसिक, इनको एक बार आपको अच्छे से देखना है. मैं आपकी हेल्प करूंगा, रीड भी कराऊंगा बीच बीच में. सो जस्ट ट्राई. आई विल राइट हियर राइट. रीड करो इसको. रीडिंग की प्रैक्टिस है ये, रीडिंग की लिस्ट. वारुण वियर. वेरी नाइस. आपने आर लास्ट में अर पढ़ा. वेरी नाइस, बिकॉज आर को लास्ट में अर ही पढ़ना है. वारुण निष्ठ वियर. किसी ने वीर तो नहीं बोल दिया इसको. वीर वो मत बोल देना. वीर सावरकर वाला वीर नहीं है ये. वियर बिल्कुल सही किया आपने. आर एट द एंड इज अर. सो वी आर. वारुण निष्ठ वियर. निष्ठ में आपने CH का रूल फॉलो किया है. CH इज से हियर. निष्ठ ख नहीं है ये. निष्ठ. Nacht. Now it is kh. Nacht. Nacht. This is nicht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So normally E is A mostly, but if it comes at the end, it is a. So gute. This is gute Nacht. Yeah. Where comes the राइट. कुछ लोग इसको बोलेंगे where common G, कुछ लोग बोलेंगे वो है common G. both are okay ना, because H is normally silent, but इसके दोनों तरफ अगर vowel आ जाए तो है पढ़ भी सकते हैं. वो है common G. Das ist kein Problem dann. Klar? Okay. So jetzt sind wir hier. Wenn wir hier sind, dann also Vorstellung. Zum Beispiel ich heiße Devkaran Saini. Ich komme aus Rajasthan. Besser gesagt aus Jaipur. Ich wohne hier in Jaipur.
mit meiner Familie zusammen. Ich unterrichte Deutsch jetzt fast, also über 10 Jahren und das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß. It's fun for me. Also Sie sollten einfach eine Vorstellung führen. Bitte stellen Sie sich vor. One by one, your introduction. Ich will das hören. Bitte schon, Nezakat. Du bist Yes, sir. laut und klar. Yes, sir. Ich bin Nezakat Ali. Ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Rawalpindi. Ich komme aus Pakistan. Meine Lieblingssport sind Fußball und Cricket. Ich möchte nach Deutschland so fliegen. Ich möchte nach Deutschland fliegen. Okay, gut, sehr schon. Nächste Person. Ein nach dem anderen, one by one, automatically. Or maybe Sneha, du. Ich heiße Sneha. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Stuttgart, Deutschland. Ich lerne Deutsch. Next. Ja, bitte. Ich heiße Rindu Sukhani. Ich komme aus Rajasthan, Kota. Vorher war ich in Bengaluru seit 7 Jahren. Vor ein paar Monaten habe ich in Rajasthan umgezogen. Okay. Next. Ja. Next. Ich heiße Ritik Sharma. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Ich lerne Deutsch. Ja, Ritik, ich wohne auch in Jaipur. Gut. Next. Ich heiße Hina Islam und ich wohne in Basel, Switzerland. Ich komme aus Indien und ich lerne Deutsch jetzt. Okay. Sehr schon. Next. Ich heiße Kirti Chauhan. Ich komme aus Indien. Ich wohne in München, Deutschland. Ich lerne Deutsch. Perfect. Next. Ich heiße Priyanka. Ich komme aus India. Ich wohne in Deutschland. Ich lerne Deutsch. Mhm. Aus Indien. Next. Ich heiße Anuja Rawat. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Ich lerne Deutsch. Perfect. Ja, noch jemand? Ja, ich heiße Swati. Ich komme aus Maharashtra. Ich wohne in Pune. Meine Hobbys sind Malen, Singen, Music hören. Ich spreche Englisch, Marathi und ein bisschen Deutsch. Gut. Ja, klar. Haben alle schon gesprochen? Okay. Ich heiße Sukhit Kumar. Ich wohne in Delhi. Ich lerne Deutsch. Ja. Manoj. Ich heiße Manoj Kumar, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Rajasthan in Jaipur. Meine Hobbys sind Fußball und Musik hören. Ich bin Krankenpfleger. Ich bin Krankenpfleger. Okay. Mhm. Und? Noch eins? Ich heiße Rajpal Matwala. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Rajasthan, aus Jaipur und wohne in Jaipur. Mein Hobby ist Fußball spielen. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ja. So. Ja. Wir haben noch Arya. Ich heiße Arya Kataria. Ich bin Hindu. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Ich bin 12 Jahre alt. Meine Hobbys sind Malen und Tanzen.
Ich bin eine Studentin. Ich habe keine Lieblingssport. Alles klar? Okay. Ich. Okay. Ja. Gut. Also so hat man gesagt, für 7 Jahre. Means for 7 years. Since 7 years different है. ठीक है? So there are 3 things. Für 7 Jahre, for 7 Jahre oder Jahren, seit 7 Jahren. 3 different things are there. Für 7 Jahre मतलब 7 साल के लिए. And for 7 Jahren का मतलब है 7 साल पहले. Before 7 years. And seit 7 Jahren का मतलब है since 7 years. Continue. Right? Still continue. Okay, something has happened and still it is going on. So ist es. Ich bin, also India is Indian. लेकिन ऐसे मत बोल देना इट्स बिन इंडियन, अदरवाइज मीनिंग हो जाएगा आई एम इंडिया. ओके, इफ यू वांट टू से आई एम इंडियन देन देयर आर 2 वर्ड्स, इंडर, इंडरिन. यस, जैसे मैस्कुलिन, इंद्र भगवान है ना अपने, इंद्र मैस्कुलिन, इंद्राणी नहीं, इंद्राणी नहीं. इंडर का मतलब है मेल इंडियन पर्सन, मेल इंदर. बट इफ यू से इंडियन इट इज इंडिया एंड इट इज इंडियन, आई एम इंडियन. सो मेल पर्सन विल से इस बिन इंडर, फीमेल विल से इस बिन इंडरिन. क्लियर? गुड. In der Schweiz, perfekt. So Sie haben natürlich sehr gut sich vorgestellt. Wir nehmen, was nehmen wir? Was sollten wir wiederholen? Wir haben Possessive. Wir müssen das wiederholen. Meiner Meinung nach. Wir haben Präpositionen. Wir müssen wiederholen. पॉजिटिव करेंगे हम लोग, रिवाइज करेंगे. प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू रिवाइज. नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, ऑल्दो यू नो बट स्टिल आई विल रिवाइज. Und adjective endung you have done but I will revise. Adjective endung, okay. Modal verben auch. Accusative, dative, Okay, then perfect. I will revise. Present perfect. present perfect, Wir Befrage, fragen auch. Okay. Ja, wir fragen. Jastra, Kein nicht. Okay. kein nicht, Kein und nicht. fein, उसमें आ Und was noch? We will revise. जो भी आपके दिमाग में है बोल सकते हो आप. We have 5 days. We will be able to do everything. So maybe I can start with nominative, accusative, dative because this is the first grammar thing. objective, Means the sentence making. From here your sentence making starts. इतने नहीं, इसके अलावा भी करेंगे. You can send me SMS or just WhatsApp. We'll take everything wherever you have difficulty. So nominative, accusative, dative. In brief, nominative, accusative, dative. This is actually sentence making. The first rule for sentence making. Nominative means subject. Accusative is object and dative is also object. Nominative subject, accusative is object and dative is also object.
So whenever you make a sentence, actually this is the minimum requirement. सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो आएगी आएगी, इससे छोटा तो सब्जेक्ट और वर्ब से छोटा तो सेंटेंस ही नहीं हो सकता. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. In a standard sentence there is also object but not necessary. इतना भी sentence हो सकता है I am going, right? So this is the minimum requirement. So first of all we take these. Subject will be a noun or pronoun. Only two things. इसके अलावा कुछ subject हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा. Noun और pronoun, that's it. Noun can be common noun और proper noun. Common noun मतलब किसी का नाम हो सकता है, या जनरल नाउन. ये नाम तो हो गया प्रॉपर नाउन. जैसे मान लो कोई बोले जर्मन टीचर, तो भाई कौन जर्मन टीचर? मैं भी हूं, ये भी है, कोई और भी है शायद. तो टीचर. टीचर नाउन. पेड़, कौन सा पेड़? राइट. तो ये जनरल हो गया. क्लासरूम, ये जनरल कॉमन नाउन जिसको बोलते हैं हम लोग. लेकिन आपने बोल दिया देवकरण, जर्मन टीचर देवकरण, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, मतलब नाम. आपने बोल दिया हवा महल, ताजमहल, तो हम समझ गए कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है. लेकिन आपने केवल इतना ही बोला बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, तो ये कॉमन नाउन, बट वो भी नाउन तो है. सो सब्जेक्ट कैन बी नाउन. सो नाउन कैन बी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन है तो फिर उसका आर्टिकल आता है साथ में, बिकॉज एवरी नाउन हैज एन आर्टिकल इन जर्मन. तो कॉमन नाउन जो भी होगा उसका देयर, दी और दास में से कोई आर्टिकल लगेगा. देयर का मतलब मैस्कुलिन, दी का मतलब फेमिनिन और दास का मतलब न्यूट्रल. ये हम लोग लिस्ट बनाएंगे, सीखेंगे इसको. सो सब्जेक्ट बस यही हो सकता है, या फिर प्रोनाउन. सब्जेक्ट कैन बी नाउन. यस प्लीज. सर अगर नाम आ जाए जो कि नाउन है तो उसके साथ तो आर्टिकल नहीं आएगा ना, उसके साथ नहीं आएगा. ये केवल कॉमन नाउन के साथ आएगा. मान लो मैं देवकरण हूं तो मेरे को डेयर देवकरण कहना शुरू मत कर देना. नाम का कोई आर्टिकल होता नहीं जनरली, लेकिन जर्मन्स ने कुछ कुछ के निकाल रखे हैं, वो अलग बात है. जैसे कुछ अपनी नदियों के उन्होंने आर्टिकल निकाल रखे हैं, किसी किसी प्लेस का भी उन्होंने आर्टिकल निकाल रखा है. तो जिसका उन्होंने निकाल रखा है वो हमको पता चल जाएगा रीड करने से. थोड़ा टेक्स्ट वगैरह रीड करेंगे हम लोग, आइडिया लग जाएगा हमको. तो जैसे जैसे हमको पता लगेगा वैसे वैसे हम लोग उसको नोट कर लेंगे. अच्छा इसका आर्टिकल भी है. ऐसे नहीं कि इसका आर्टिकल क्यों है, ऐसे नहीं है ना. एटीट्यूड ये वाला रखना है. अच्छा इसका आर्टिकल भी है, ओके ठीक है, इसको मैं अलग से ध्यान रखूंगा, है ना. ऐसे नहीं कि ये कैसे हो गया, ये हो गया, वो तो ऑलरेडी हो चुका है. हम लोग अब आए ना जर्मन में, वो तो काम पहले ही हो चुका, उसमें अपने हाथ में नहीं है. तो उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम देखेंगे. अच्छा ओके ये एक और चीज है, नहीं उसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा. सो नाम के जनरली आर्टिकल नहीं होते, बट किसी किसी है. घर पे जाके चेक करना, पंजाब का आर्टिकल लगा रखा है उन्होंने. ओके तो पंजाब कोई बोले कि हमारे राजस्थान का क्यों नहीं है जी आर्टिकल, पंजाब का है. तो अब उसका कोई जवाब नहीं है क्यों है, ठीक है. वो उनको भी नहीं पता क्यों है. तुमने पूछा था वहां जर्मनी में, मैंने कहा ये क्या किया आपने, अपने के तो कर लिया, ठीक है हमारे पंजाब के आपने आर्टिकल लगा दिया. तो बोले अच्छा लगा दिया क्या, मैंने कहा हाँ लगा दिया, देखो डिक्शनरी. बोले ये नहीं पता क्यों लगा दिया हमने, बट ठीक है उसको वैसे ही लेना है. सो ये हो गया सब्जेक्ट. नाउन एंड प्रोनाउन, ओनली टू थिंग्स. इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता. ओवर सब्जेक्ट इतना ही हो सकता है. लेकिन प्रोनाउन अगर होगा तो इश, डू, एआर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. ये प्रोनाउन है. यू ऑलरेडी नो मीनिंग. आई, you, he, it, she, we, you all या you both.
तुम सब या तुम दोनों, ये मीनिंग है इसका, तुम दोनों, यू बोथ, और तुम सब। जी मतलब यू बट फॉर्मल, मतलब आप, एंड दिस जी इज दे, वे, ही सी इट, ये तीनों सिंगुलर है। दिस इज टू, मतलब इनफॉर्मल है ये, इनफॉर्मल यू, ये इनफॉर्मल है, और ये यू ऑल, दिस इज ऑल्सो इनफॉर्मल, बट दिस यू इज फॉर्मल। ये इसका मीनिंग है, इश, डू। इसी को आप अगर सिंगुलर प्लूरल में देखो, मान लो इसी पूरी टेबल को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में देखें इसी टेबल को, तो इश है सिंगुलर, और इसका प्लूरल इसी में है, कहां है? वी आर। इश का मतलब मैं अकेला, एंड वी आर मीन्स वी ऑल। सो दिस इज द प्लूरल ऑफ इश। डू इज सिंगुलर, and या ear will be plural here. So do को कट करते हैं, ear को भी कट करते हैं। air is singular and plural, this one ना, they. So this Z we can cut. Then this is done. S is singular and plural. Z again the same. We'll cut again. Z is singular and plural. Z. Same. And then Z capital is singular. Z मतलब आप, कोई एक बंदे को, मैं मेरे पापा को बोलता हूं आप, और उसका प्लूरल जी। तो ये वाला जी सिंगुलर है, ये वाला जी है। इसका मतलब है यहां पे हमने एक कम लिखा था, एक और होता है। तो इसका मतलब है आप, और इसका मतलब है आप सब। इसको ना भी लिखे, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इट इज सिंगुलर और प्लूरल। So this is then personal pronoun. Subject is done. अगर मान लो किसी का नाम है देवकरण, ये मेरा ही है एक्चुअली, देवकरण। For देवकरण I can write, what can I write? Pronoun. I can write ish. So देवकरण के लिए ये जो नाउन है, नाउन की जगह जो भी वर्ड काम में आता है उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। दिस इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की टेबल है एक्चुअली। सो या तो नाउन होगा, और या फिर उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट, कोई वर्ड यूज करेंगे, दैट इज प्रोनाउन। मैं अपने लिए बोलूंगा इश, लेकिन तुम लोग मेरे लिए हो सकता है डू बोल दो, हो सकता है जी बोल दो, इट्स अप टू यू। जी मतलब आप, और डू मतलब तुम। और आपस में बात करो तो आप क्या बोलोगे मेरे लिए? एयर। एयर। कोई आपस में बात करते टाइम पे भी जी बोल दिया तो वो गलत हो गया, क्योंकि ही बोलना है ना उसके लिए। तो सो इश तो मैं हूं, आप लोगों के लिए मैं एयर हो सकता है, जी हो सकता है, डू हो सकता है। वियर में हम लोग सब शामिल है। ओके, also das Wort. Then verb, verb हर बार कोई ना कोई वर्ड तो होगी। वर्ब जो भी होगी, तो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड सी, हर बार इसी के हिसाब से। कोई अगर नाउन भी है, सपोज कोई नाउन भी है, तो भी वो ही सी इटी तो होगा, या फिर दे होगा, बिकॉज 3-4 लोगों के नाम ले दिया आपने, सपोज मोहन, सीता, दिनेश, सुरेश,
आपने कई सारे लोगों के मान लो नाम ले दिए, तो आप बोलोगे वे, दे बोल सकते हो आप। सिंगुलर कोई होगा, सपोज मोहन है तो मोहन के लिए आप बोलोगे एयर, ही। कोई रवि है उसके लिए एयर। अगर कोई है सुनीता, सी। तो आपको ऑलरेडी पता है, A1 में आपने यही तो किया है, पूरे A1 में ARSD यही किया है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग। सो दिस इज द सब्जेक्ट, ये होगा या इसकी जगह नाम होगा किसी का। एंड इन वर्ड यू हैव टू कंजुगेट, वर्ब का आप ऑपरेशन करोगे हर बार, जो भी वर्ब आ गई उसको ऑपरेट करके यूज करोगे, एज इट इज यूज नहीं करते ना। जैसे मान लो माखन, त्रिंकन, ये कोई भी वर्ब है, त्रिंकन, माखन, कोखन, इसको आप एज इट इज यूज नहीं करते हो। आपको दिखे तो भी समझ लेना एज इट इज नहीं कर रहे हो, उसको आप चेंज मॉडिफाइड करके यूज करते हो, हिंदी की तरह ही। हिंदी में मान लो आपने पीना यूज, ये वर्ब है आपकी पीना, तो आप इसको पीना नहीं यूज करते, आप बोलते हो मैं पीता हूं, मैं वैसे पीता नहीं हूं। सपोज एग्जांपल के लिए, मैं पीता हूं, वह पीती है। मैं पानी पीता हूं मतलब यस, वे पीते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल वर्ब तो पीना थी, लेकिन हम पीना यूज कभी नहीं करते, हम सब्जेक्ट के हिसाब से उसको चेंज करते हैं वर्ब को। और चेंज भी क्या करते हैं, केवल एंडिंग चेंज करते हैं हम लोग, ना को चेंज करते हैं हम लोग। ना, पी तो वैसा का वैसा ही है, पी, मैं पीता हूं, वह पीती है, तो ये केवल एंडिंग यूज करते हैं। अगर मान लो ये वर्ड बड़ी होती, हिंदी वाली भी सपोज बड़ी होती, मैंने छोटी ले ली, मान लो वर्ड होती कपड़े पहनना या सुबह उठना, कुछ भी मान लो इस तरह की बड़ी वर्ब होती, कपड़े पहनना, तो भी हम लोग क्या करते, केवल एंडिंग ही चेंज करते। ये यहां तक ऐसा कैसा चलता, मैं कपड़े पहनता हूं, ऑफ कोर्स मैं कपड़े पहनता हूं, ये केवल एंडिंग चेंज होगी और यहां तक बाकी सेम चलेगा, यहां तक। मतलब वर्ब को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिंदी में भी और जर्मन में भी, इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। वह कपड़े पहनती है, केवल एंडिंग चेंज करते हैं हम लोग, चाहे वर्ब कितनी बड़ी हो, केवल एंडिंग चेंज करेंगे। वे सब कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े पहन तक सेम और एंडिंग चेंज। ऐसे ही यहां पे मान लो वर्ब है आपकी त्रिंकन, सो यू ऑलरेडी नो कि त्रिंकन में केवल ईएन एंडिंग चेंज होगी। हिंदी की वर्ब में नॉर्मली ना आता है, खाना पीना, हंसना, सोना, पीटना, पिट जाना। सो ऐसे जर्मन की वर्ब में ईएन आता है, तो इस त्रिंके, यू ऑलरेडी नो, इस त्रिंके, डू, trinkst, ARSD, trinkt, wir trinken, ihr trinkt, trinken। कुछ इरेगुलर वर्ब भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर वर्ब रेगुलर ही है। तो ज्यादातर वर्ब में आपको ये फॉर्मूला फिट करना है दिमाग में, ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ई एन, ये वाला फॉर्मूला फिट रखना है। इरेगुलर का मैं अलग से बता दूंगा। सो ये हो गया आपका सेंटेंस, इस तरह का, आई ड्रिंक। अब जर्मन इंग्लिश से थोड़ी इजी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दो चक्कर ही नहीं है। जैसे मान लो इंग्लिश में आपने सीखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो बहुत सारे आपको टेंसेस करने पड़ते हैं, तो वहां बहुत सारे टेंसेस हैं, तो टेंशन भी है, बट यहाँ पे कम है टेंसेस, उस तरीके के उतने हैं ही नहीं। ये वाला सेंटेंस है, इसका मतलब है मैं पीता हूं, इसका मतलब ये भी है मैं पी रहा हूं, और जरूरत पड़े तो इसका मतलब ये भी है मैं पीऊंगा। तो फ्यूचर भी हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसी का मतलब है, मतलब चार एक में ही है। तो अगर कोई बोल दे इस तरीके मैं पीता हूं, इस तरीके
का मतलब है मैं पी रहा हूं, और कोई बोले मैं तो 3 घंटे से पी रहा हूं। Ich trinke seit 3 Stunden। तो आपने टाइम ही तो ऐड किया है प्रीपोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर तो वही है, इस trinke। और कोई बोले मैं तो कल पीऊंगा, Ich trinke morgen। टाइम आपने एलिमेंट, टाइम एलिमेंट यहां लगा दिया। आप नहीं भी लगाते और कॉन्टेक्स्ट अगर पहले से क्लियर होता, मान लो हमारी बात हो रखी है पिएंगे, तो मैंने कहा हो जाए, ये बोले कि इस trinke morgen, या फिर इसने बोल दिया केवल trinkst du morgen oder nicht, ये बोलेगा इस trinke, तो मैं समझ गया कल की बात है। तो इसमें अगर पहले से कॉन्टेक्स्ट गिवन है तो ये फ्यूचर का भी मीनिंग दे देगा। टाइम ऐड कर दिया यहाँ पे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो गया, इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस तो हो ही गया। तो एक ही 4 का काम करता है, मतलब एक साथ आपने तो 4 शब्द है अपने आप ही। नाउ वी कम टू ऑब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर, ओके। और वर्ब का ये फॉर्मूला, नाउ ऑब्जेक्ट, जो अपोजिटिव डाटिव जो हमको परेशान करते हैं ना जनरली, सब्जेक्ट वर्ब, अभी तक यहां तक की बात करी है हमने। नाउ आई एम कमिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो जनरली दिस इज ए स्टैंडर्ड सेंटेंस। जनरली ये दिखता है आपको, हर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखती है आपको। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब यहां तक तो फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअली 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी अपोजिटिव, ऑब्जेक्ट कैन बी डाटिव, 2 तरीके। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि ये डाटिव का क्या चक्कर है, ये अपोजिटिव क्या है, कोई सिख हो जाता है, कोई कहता है कि मैं तो टू देख लेता हूँ, कोई कहता है कुछ। अपन को इसको वर्ब से पकड़ना है, राइट। आप लोगों ने इवन में कर भी रखा है, बट रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ सारी चीज। कुछ लोग नए आए हैं, मान लो पता नहीं हो, फिर परेशान हो अपन सब लोग। सो सब्जेक्ट वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मतलब ऑब्जेक्ट की भी बात नहीं हो तो भी वर्ब देखते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अपोजिटिव या डाटिव या नॉमिनेटिव। वर्ब 3 ही तरह की होती है, मतलब 3 टाइप की, बेसिकली 3 तरह की वर्ब है। एक है कोई नॉमिनेटिव वर्ब कैटेगरी, एक है कोई अपोजिटिव, एक है डाटिव। अब कोई बोलेगा ये एक सेपरेबल भी सुना है मैंने इर्रेगुलर भी सुना है। वो सेपरेबल इर्रेगुलर जो भी है वो सारे इन 3 में ही है, ठीक है। सब कैटेगरी की बात करेंगे, बेसिकली 3 ही है, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव। सो नॉमिनेटिव पूरी जर्मन में ही जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, पूरी जर्मन लैंग्वेज में 3 नॉमिनेटिव, ये 4 नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं, इसके अलावा नहीं है कोई। जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, ये 4 वर्ब नॉमिनेटिव है। ये 4 वर्ब नॉमिनेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने वाला नहीं है। जैसे मान लो कोई बोले इश हाइसर देव, इश बिन देव, मान लो शॉर्ट में मैंने देवकरण को देव लिख दिया, इश बिन देव। अब कोई बोले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब होगी, तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट ही हुआ ना, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव वर्ब के बाद में मतलब ही नहीं है ऑब्जेक्ट का, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वर्ब अपोजिटिव है या डाटिव है सपोज, उसी के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। नॉमिनेटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो बात अलग है। अब यहां पे मैंने बोला इश बिन देव, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट ही है, ये और ये दोनों ही सब्जेक्ट है। हाँ दोनों ही है, क्योंकि ये भी तो मैं ही हूं, इश बिन देव, तो इश में भी मेरे हाथ लगाया मैंने, देव में भी मेरे ही लगाया, तो मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं सब जगह हूं, इधर हूं और इधर हूं, बस 2 जगह हूं मैं। इश
हाइसे देव, तो इसमें भी मैं इधर हूं और मैं इधर हूं, दोनों तरफ वही तो है, तो ये केवल नॉमिनेटिव हुआ। इश हाइसे देव, इश बिन देव, ये जनरली दोनों वर्ब हैं ही किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, राइट? जनरली ये वर्ब्स किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं हम लोग। ये जाइन वर्ब तो बहुत, ये मान लो कि जब कोई और वर्ब नहीं आ रही है तभी ये आ सकती है, अदरवाइज तो इजारम तो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। जैसे मैं बोलूं आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग, तो कुकिंग में एम भी इंक्लूडेड है, इश्कोक है, तो इसमें इजारम तो ऑलरेडी है ना। तो इश बिन देव, इस हाइसल देव, ये दोनों, ये इधर भी नॉमिनेटिव इधर भी नॉमिनेटिव। कोई बोले दिस इज दस इश्ट कुली, तो ये और ये एक ही चीज है, इसी के हाथ लगा के कह रहा हूं कि दस इश्ट कुली, यही चीज है। तो नॉमिनेटिव में तो ये चार वर्ब होंगी आपकी। इश वेर्डे आर्ट्स, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, इश आर्ट्स वही है दोनों तरफ। वेर्डन का मतलब टू बिकम होता है और ब्लाइबन का टू स्टे, आई स्टे हियर, आई एम हियर। जनरली इसके बाद में तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट भी उस तरीके से नहीं आता जनरली। सो ये हो गया नॉमिनेटिव। बात ऑब्जेक्ट की अभी, तो नॉमिनेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है जब वर्ब आकुजाटिव या डाटिव आए, तब ऑब्जेक्ट का काम आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो तरह के हो सकते हैं, ये आकुजाटिव हो सकता है और ये डाटिव हो सकता है। तो एक्चुअली ये वर्ब आकुजाटिव होगी तो वो आकुजाटिव हो जाएगा, वर्ब डाटिव होगी तो वो डाटिव हो जाएगा। सो वर्ब तो तीन तरह की होती है, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ऑलरेडी बता दी आपको। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ये तो हो गई जाइन वर्ब, मतलब नॉमिनेटिव वर्ब। उसके बाद में कुछ डाटिव वर्ब्स होती हैं। अब डाटिव वर्ब में A1 के स्टूडेंट्स को तो केवल इतने ही बताता हूं कि देव जी हैं पास। मेरा नाम देवकरण है, तो देव जी है पास, मैं पास हूं अगर आपको जर्मन आ गई तो। सो ये डाटिव वर्ब बताता हूं मैं A1 में केवल, और आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर यही आती है, देव जी है पास, ये डाटिव वर्ब है। अभी A1 के हिसाब से, सो डंकन एस गेट, फोल्गन, गिह्यूरन, ग्राटुलियरन, गिफालन, हेल्फन, पासन, पासियरन, antworten, schmecken। So for the time being A1 के हिसाब से तो यही डाटिव वर्ब है। या फिर हम एक कैटेगरी टू वे वर्ब्स की करते हैं कि वो वर्ब कभी डाटिव कभी आकुजाटिव होती है, राइट? सो मोस्टली तो ये प्योरली डाटिव वर्ब्स होगी, वो नॉमिनेटिव वर्ब होगी। अब एक बार हम लोग टू वे वाली वर्ब्स को छोड़ते हैं, एक बार इन्हीं को लेते हैं और डाटिव में भी यही लेते हैं एक बार। अब अगर ये वर्ब आ जाए तो हम ऑब्जेक्ट डाटिव मान लेंगे, और ये वर्ब नहीं आए दोनों में से तो हम लोग एक बार आकुजाटिव मान लेंगे। इफ आई से आई हेल्प यू, तो आपका जो इश डिश ने हियर आएगा, बताता हूं कैसे। इश डू एयर एस जी वियर ईयर जी जी, ये वाला है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे मैंने आपको बोला वर्ब तीन कैटेगरी की है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ऐसे ही पर्सनल प्रोनाउन भी तीन तरह के हैं। सो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये तो सब्जेक्ट के लिए था अभी तक जो बताया था आपको, बट जब बात आकुजाटिव और डाटिव वर्ब की आ गई तो इनका भी आकुजाटिव और डाटिव भी लिखना पड़ेगा हमको। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर
wir uns ihr euch, इसको euch बोलते हैं, euch नहीं बोलते। रूल तो बताया था आपको खैर बोलना, देखो इसको तो euch बोलते हैं, ये एक्सेप्शनल है मामला। euch sie ihnen sie ihnen, ये पार्शियल प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव, मतलब ये वाली लाइन आएगी फॉर सब्जेक्ट। मैं जब भी नॉमिनेटिव बोलूं तो आप समझ लेना मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं। फर्स्ट लाइन इज फॉर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, सेकंड वन इज फॉर accusative, थर्ड इज फॉर dative। बट ये सेकंड और थर्ड तो ऑब्जेक्ट के लिए है और वो डिपेंड करता है वर्ब पे। वर्ब accusative है तो ऑब्जेक्ट ये आएगा। अब आप ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि एक वर्ड बोलता हूं मैं, पेन, पेन बताओ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? पेन। या देवकरण, देवकरण सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? देवकरण वर्ड सब्जेक्ट सब्जेक्ट, देवकरण इज सब्जेक्ट, दोनों ही हो सकता है। वर्ब भी नहीं, मैं किधर खड़ा हूं उस पर डिपेंड करता है। मैं बोलूं देवकरण आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है। अगर ऐसे बोल दूं ही इज हेल्पिंग देवकरण तो ऑब्जेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है, आप ये कह नहीं सकते कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। पेन पढ़ा है तो सब्जेक्ट, आई हैव ए पेन तो ऑब्जेक्ट। तो पेन जो है केवल पेन देख के नहीं बोल सकते, आपको सुनना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। केवल जैसे अभी एक सेंटेंस बोला था मैंने, क्या था वो हेल्प से रिलेटेड? is help, I help you, I help you, ich helfe dear, dear नहीं dear, R लास्ट में आता है तो R बोलते हैं, dear, ich helfe dear, my dear वाला साउंड है dear, ich helfe dear। ये डाटिव हमने लिया है यहाँ पे केस, क्योंकि ये डाटिव भी तो है dear। डू का एक्यूजेटिव में डिश, डियर। ये डाटिव क्यों लिया हमने? बिकॉज ये हेल्पफुल वर्ब इस कैटेगरी में है, यहां पे है। ये वर्ब अगर डाटिव होती है तो ये ऑब्जेक्ट डाटिव हो जाता है, और ये वर्ब यहां पे एक्यूजेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी एक्यूजेटिव हो जाता है। अगर मैं बोलूं यू आर विजिटिंग मी, तुम मुझे विजिट करते हो, यू आर विजिटिंग मी, Ich besuchen, du besuchst मिश या मियर? मिश। क्यों? क्यों भैया एक्यूजेटिव है वर्ब? ये एक्यूजेटिव सर्विस ये एक्यूजेटिव है क्या? कैसे ये एक्यूजेटिव? हाँ, तो अभी केवल इतना ही दिमाग लगाना है अपन को, टेंशन लेनी नहीं है। इसमें नहीं है ना तो डाटिव नहीं है। टू वे तो बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आप देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये डाटिव तो नहीं है। इसमें है क्या? नहीं। इसमें भी नहीं है, इसका मतलब नॉमिनेटिव भी नहीं है, तो बच गई वो सब एक्यूजेटिव मान लो आप अभी। तो बेजुक अगर एक्यूजेटिव माननी है तो इसके बाद एक्यूजेटिव भी तो आ सकता है। तो डू बेजुक्स मिश, तो इस तो लिख नहीं सकता क्योंकि इस तो नॉमिनेटिव है, और डियर लिख नहीं सकता क्योंकि मियर लिख नहीं सकता क्योंकि मियर तो डाटिव है। ये तो तब लिखता जब वर्ब डाटिव होती, और ये जब नॉमिनेटिव होती। अब वर्ब है एक्यूजेटिव, और एक्यूजेटिव क्यों है? क्योंकि डाटिव नहीं है, यही रीजन है, इसीलिए एक्यूजेटिव है ये। तो एक्यूजेटिव के बाद में एक्यूजेटिव ही चाहिए। दे हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करते हैं, वे, दे हेल्प मी। हेल्प है क्या इसमें? तो मियर आएगा कि मिश आएगा? दे हेल्प मी, मियर आएगा। अब ये कईयों के क्या है ये भी समझ में नहीं आता, कईयों के, आप लोगों को तो आता है बट कई लोग मेरे को पूछते हैं, बच्चे अलग से अकेले में, वो कहते हैं सर ये क्या है,
तो ये सिंपल वैसे ही है, मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको, वह उसे उसको, वह उसे उसको, वह उसे उसको। अब ये लड़की है तो मतलब फेमिनिन है, केस तो ही बोलेंगे ना हम लोग। लड़की तो दास होता है जर्मन में, फिर मैंने कहा गलती से बोल दिया, लड़की तो दास मेडिशन है, फेमिनिन है कोई तो उसके लिए जी। हम, हमें, हमको, तुम सब, तुम सबको, तुम सबको, या फिर तुम्हें बोल सकता हूं मैं, तुम, तुम्हें, तुम सबको, आप, आपको, 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 राइट, वे, उन्हें, उनको। इंग्लिश में तो दे, देम करोगे ना आप ऐसे। तो अब कोई ऐसे भी बोल सकता है कि मैं, मुझे, मुझको। अब इसमें कोई कर सकता है कि वह मुझको मिलता है, मुझसे मिलता है ना, तो आकुजाटिव लेना है हमको। ए थ्रिफ्ट मिश, कोई बोले वो तो मुझको मिलता है, मुझसे मिलता है, इस चक्कर में नहीं पड़ता है हमको। तो ये देखना है वर्ब इसमें है कि नहीं। सिंपल तरीका ये है कि वर्ब आकुजाटिव है कि डाटिव है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ये आएगा कि ये आएगा। आई लव माई बेबी, आई लव द बेबी कर देता हूं, द बेबी, बेबी इज das Kind, बस बेबी भी होता है das Kind। सो वर्ब जो लेबन है वो लिबन, आई लव आ गया ना, जो लिबन जो है आकुजाटिव डाटिव या नॉमिनेटिव? लिबन आकुजाटिव। Ich liebe das Kind. Ich liebe das Kind। अगर ये बोलना हो आई लव यू, Ich liebe dich. इश Liebe dich. डिश या डियर? Dish. डिश, यस आकुजाटिव। तो ये जो लीबे है ये आकुजाटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं है, तो आकुजाटिव हुई ना। तो डू का डिश लेना पड़ता है हमको, क्योंकि ये वर्ब आकुजाटिव है, तो डिश लेना पड़ता है, डियर नहीं ले सकते। चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो ये दो ही हैं, इनमें से हम लोग वर्ब के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ यस हमेशा नहीं, बट इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी की वर्ब है उनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। टू वे, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं टू वे। टू वे वर्ब को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं एनवीडीए वर्ब्स। टू वे वर्ब्स बोल दो उनको, या एनवीडीए वर्ब्स बोल दो, एक ही बात है। वर्ब होती है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। तो ये भी आकुजाटिव डाटिव ही है ये वाली वर्ब। तो टू वे, जैसे प्रीपोजिशन होती है टू वे, ऐसे वर्ब भी टू वे। इसमें हम लोग जनरली लेते हैं काउफन, साइगन, verkaufen, erklären, erzählen, geben, sicken, schenken, sicken, schenken, senden। I give you, मतलब टू यू का जहां पे आ जाए, मानो उधार देना कोई वर्ब है, लायन, टू यू, लायन, किसी को देना कुछ। ये वाली वर्ब में आप किसी पर्सन को ही कुछ दे सकते हो। मैं तुमको पैसे देता हूं, आई गिव यू मनी, आई गिव यू a packet, I give you chocolate। तो किसी पत्थर को तो कुछ नहीं दे सकता मैं, किसी न किसी पर्सन को, कोई लिविंग थिंग तो होनी चाहिए जिसको मैं दे दूं और वो ले ले। तो इसके बाद में अगर कोई पर्सन, ठीक है, तो वो केस डाटिव हो जाता है। और अगर इसके बाद में कोई थिंग आ जाए तो वो आकुजाटिव हो जाता है इन वर्ब्स में। कुछ वर्ब्स और भी हैं, but generally kaufen, zeigen,
geben, erklären, erzählen, empfehlen, zeigen, to show, I show you the way, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। तो किसी को, तुमको, तुम्हारे बच्चे को, किसी न किसी को रास्ता दिखाता हूँ मैं। दीवार को तो क्या रास्ता दिखाऊंगा, मतलब वो लिविंग चीज होनी चाहिए, कोई पर्सन नहीं होता है जनरली इसमें। सो काउफन के बाद में अगर कोई पर्सन आ गया तो डाटिव केस आएगा इन सभी वर्ब्स में, और इन्हीं सभी वर्ब्स के बाद में अगर कोई थिंग आ गई तो हमेशा अपोजिटिव केस होगा इन सब वर्ब्स में ही। और भी है कुछ, लेकिन मेनली ये दिखेंगे आपको। आई एम सेलिंग यू माई हाउस, मैं तुमको मेरा घर बेच रहा हूं। आई एम सेलिंग यू, पहले इतना ही बनाओ, मैं तुमको बेच रहा हूं, तुमको नहीं, मतलब आई सेलिंग यू माई हाउस। इश verkaufe die Haus. dir Dear house. mein Haus। Mein house. इश verkaufe dir, मैं तुमको, मतलब इन वर्ब में आपको अगर ये देखना हो कि कब डाटिव कब अपोजिटिव, तो किसको, किसको और क्या, क्या हमेशा थिंग होगी, क्या का जवाब अपोजिटिव और को का जवाब डाटिव। किसको, राम को, महिमा को, तुमको, तो को का जवाब किसी ने किसी को, और कुछ क्या का जवाब whom और what। कोई पूछेगा whom किसको और what, so what का जवाब है क्या, और whom को का जवाब है डाटिव, किसको, to whom in English you will say to whom, yes, to whom। so ich verkaufe dir, ये डाटिव भी आएगा यहाँ पे इस वर्ब के बाद में। ich verkaufe dir mein Haus, मैं रवि को या हो सकता है जहां भी को और क्या का मीनिंग निकल जाए वो वर्ब और भी हो सकती है हर बार, इसलिए चेक करने के लिए ये हर बार आपकी हेल्प करेगा। किसको क्या, हाँ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम लोग, हम तो ये देखेंगे फंडा, किसको और क्या। हाँ, कोई ये मत कह देना ऐसा क्यों, क्यों नहीं, ऐसे लिखना, अच्छा ऐसे है, ओके ऐसे लिखना इसको, राइट, सही कह रहे हो आप। हिंदी में उसको अलग तरीके से ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, बट किसी को, तो अभी किसी को का मतलब के लिए भी निकलता है। जैसे मैं बोलूं ich kaufe dir eine Schokolade, मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट खरीद रहा हूँ। अब कोई ये कहता नहीं मैं तुमको चॉकलेट खरीद रहा हूँ, लेकिन Ich kaufe dir। यस, तो पर्सन उसके बाद में अगर आया को और क्या, इसको आप के लिए भी ट्रांसलेट कर सकते हो, बट एनवीडीए का मतलब है प्रीपोजिशन नहीं आ सकती, दिस इज फॉर श्योर। अब कोई मेरे को बोलेगा इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, फ्यूर डिश eine Schokolade, क्यों नहीं आएगी, तुम्हारे लिए खरीद रहा हूं, ich kaufe für dich। Of course that is correct, but NVDA जब भी केस होता है Germans avoid that, they prefer this one। प्रीपोजिशन नहीं आएगी ना, NVDA में प्रीपोजिशन नहीं आ सकती इस तरीके में, ठीक है। हम लोग जब भी NVDA बनाएंगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, और जब भी इस तरह का केस हो, किसी को और क्या, किसी के लिए क्या, इस टाइप का अगर सेंटेंस हो, पर्सन और थिंग आ रहे, we will prefer this without preposition। This is the German practice। So अब हम लोग जहां भी सेंटेंस बनाएंगे तो नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव, इसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। कुछ वर्ब्स आपको बाद में मैं और भी बताऊंगा, कुछ डाटिव, बट अभी आप ये मान के चलो दिस इज देव जी है पास,
दाटिव, ये वर्ब्स दाटिव है। ये वाली वर्ब्स जो है वो टू वे है, कैन बी आकुजाटिव और दाटिव, ये तो दोनों ही हो सकती है ना। अगर मैं बोलूं आई एम गिविंग अ पेन, ये नहीं बताया किसको, आई एम गिविंग अ पेन, सो गिव जो है गेबन, इसमें लिखी है कि नहीं, मैंने लिखी है ना। आई एम गिविंग अ पेन, पेन इज देयर कूली, आई एम गिविंग अ पेन, सो अ और द की भी टेबल लिख देता हूं, देयर the, does, the, then, the, does, then the, does the, them, them, they are, them plus n, does. So nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. Ein की टेबल, ein, eine, einen, einer, einem. So nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, तो प्लूरल तो है नहीं क्योंकि बात एक ही कर रहे हैं इसमें हम। So I am giving a pen, pen is masculine, their coolie. What will be your sentence? I am giving a pen. Ich gebe einen Kuli. So ein nominative, masculine है, der से पता चल रहा है masculine है, and वर्ब से accusative। इसके बाद में कोई थिंग आ रही है, इन वर्ब्स के बाद में अगर कोई थिंग आएगी तो केस विल बी accusative। So given is here from that category, so we need accusative, so masculine will take accusative। Ich gebe einen Kuli। If I say, आपने बोला किसको दे रहे हो पेन, ये सोने वाला तुमको, I am giving you, dear, so ich given, dear, ich gebe dir, I am giving you, क्योंकि गिविंग जो है गिवन वर्ब है वो इसमें से है और इस वर्ब के बाद में कोई पर्सन है, देन द केस विल बी दाटिव, ich gebe dir। और अगर दोनों ही आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन विल बी दाटिव एंड थिंग विल बी accusative, बट NBDA it means D will come first, means dative will come first, means indirectly I am saying person will come first। So dative is the person and accusative is the thing only। So if both the cases are there in the same sentence, एक में दोनों आगे person और thing, तो हम लोग dative and then accusative। So I am giving you a pen, ich gebe dir einen Kuli, ich gebe dir einen Kuli, I am giving you a pen। ये NVDA का रूल हो गया, nominative, accusative, dative। Now the sentence is they have a car, car is das Auto, das Auto, they have a car, उनके पास एक कार है। हावन वर्ब कौन सी है, हावन accusative, accusative क्यों है भाई, accusative ही है, क्यों है, बस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है तो accusative ही है, मतलब इसमें नहीं है इसलिए accusative है, ये समझ लो आप तो। I have a car, car is das Auto, now I have a car बोला मैंने ना, I have a car, तो subject will be always, कोई ये मत देख लेना अरे हावन आ गई, accusative आ गई तो इसकी जगह शुरू में ही मिश टिका दो, ऐसा काम मत कर देना कि वर्ब जो भी है accusative, dative, वर्ब का इफेक्ट वर्ब के बाद होगा।
सब्जेक्ट पे कुछ असर नहीं पड़ता, वर्ब कोई सी आए चाहे। सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट विल रिमेन ऑलवेज। कभी कभी कोई हेल्पफुल देख के सब्जेक्ट को भी मियर कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नॉमिनेटिव ओनली। तो सेंटेंस है आई हैव ए कार, आई हैव अ कार। Ich habe ein Auto. Ich habe ein Ich habe Auto. Ich habe आपने आइन किया, आइनन क्यों नहीं किया? Das Artikel und das Akkusativ haben Akkusativ. बिल्कुल सही किया आपने, आइन ही आएगा, लेकिन क्यों? न्यूट्रल का आकुजाटिव, न्यूट्रल तो इसका आर्टिकल है दास आउटो। तो दास जब पता चल गया आपको तो पूरी टेबल को मत देखा करो, केवल इसी को देखना है। ये पता चल गया कि इसका आर्टिकल दास है तो इधर उधर ताका झाकी मत करो, केवल इसी को देखो, दास में देखना अपन को। और वो आकुजाटिव है क्यों? क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है, तो यहाँ पे देखना है, इधर उधर भी नहीं देखना, स्पेसिफाई करना है ना उसको, उसका एड्रेस यही है। तो कोई इतनी सारे देखते हैं और इतनी सारे टेंशन में आ जाते हैं। आप इतने सारे देखते क्यों? आप अपने काम की चीज देखो, उसमें द और आपको पता चल गया मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन है और द है तो इसको देखो, इन पड़ोसियों को देखो ही मत, केवल आपको यही देखना है। अब इसमें सब्जेक्ट है तो इसको देखो केवल, ऑब्जेक्ट है तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी है। तो अभी हम लोग जो आकुजाटिव और डाटिव केवल और केवल वर्ब से डिसाइड कर रहे हैं। बाद में जब प्रीपोजिशन हो जाएगी तो प्रीपोजिशन का भी केयर करेंगे हम लोग, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग वर्ब आकुजाटिव, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, वर्ब डाटिव, ऑब्जेक्ट डाटिव, इतना ही करना है अभी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, I am purchasing a chocolate. I am purchasing a chocolate. वर्ब कौन सी है purchasing? काउफे, Kaufе, ein Schokolade. Die Schokolade है? Ja. Schokolade. So I am purchasing a chocolate. Ich kaufe eine. Ist Ich kaufe eine. Ich kaufe eine आएगा या ein? Eine Schokolade. आईने, क्योंकि चॉकलेट जो है वो फेमिनिन है और ये वर्ब काउफन है, इसके बाद में कोई ना कोई थिंग ही आ रही है, तो आकुजाटिव है काउफन। सो इश काउफे, और फेमिनिन में आइन की टेबल, फेमिनिन में तो होती ही आइन की है, और इसमें हमको चाहिए आकुजाटिव। क्यों? क्योंकि वर्ब काउफन। अगर मैं बोल दूं आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, इसमें मिल्क आकुजाटिव होगा कि डाटिव? आकुजाटिव होगा। कैसे पता चला? कैसे पता चला आकुजाटिव होगा? Trinken Akkusativ. ट्रिंकन आकुजाटिव वर्ब है, वेरी गुड। तो इसका मतलब अपन यही खेल लेते हैं, वर्ब कौन सी है। एक वर्ब, मैं वर्ब लिखता हूं यहाँ पे, आप फटाक से जो पहले बोलेगा वही जीतेगा। आपको वर्ब देखते ही बताना है कि आकुजाटिव है कि डाटिव है। मक्खन, आकुजाटिव, कोखन, आकुजाटिव, जुखन, आकुजाटिव, बेजुखन। आकुजाटिव, किसी किसी वर्ब में एनबीडीए की पॉसिबिलिटी होगी तो उसको अपन वैसे देखेंगे, है ना, किसको और क्या के हिसाब से। जैसे कोखन का बताया था, दोनों में मक्खन, मक्खन, ट्रिंकन, हेल्फन, डिंकन, हाँ, दिस इज आकुजाटिव। डंकन, डाटिव।
Gehören. Gehören. Okay. Beantworten. Antworten. Antworten is dative. Yeah. And beantworten is accusative. Why? Because it is not there. Right? उस टेबल में नहीं है इसीलिए बस मीनिंग एक ही है बट ओके मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आप ये बताना इसमें वर्ब नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव में से कौन सी आई है एर इस्ट राम Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Accusative? Yes. einen आ गया किसी को einen से पता चलेगा कोई habe देख के बताएगा बट आपको बताना है कि accusative या dative. Du bist mein bester Freund. Du bist. You are my best friend. Du bist mein bester Freund. Ich habe keine Zeit. Wir sind Freunde. Ich kaufe Joghurt. NVDA. Ich kaufe dir. NVDA. जब मैंने डीए बोल दिया तो इसमें आपको और ज्यादा दिमाग लगाना है डीए सुन के समझ जाओ ये तो डाटिव लिया है इसने एनवीडीए ओके Er hilft mir manchmal. Dative. Er hilft mir. Helfen Verb आ गई ना? Hilft. Ich besuche dich am Wochenende. Besuchen आ गई तो Akkusativ. Die Frau besucht mich. Das ist mein Haus. Er hat keinen Bruder. Mein Vater ist Geschäftsmann. Ich verkaufe Milch. NVDA. Okay. Das Kind gehört mir. Das Haus gefällt mir. Super. Accusative. Gefällt mir. Okay. Ich habe 2 Kinder. Meine Kinder sind intelligent. Ich verkaufe dir Milch. Schreiben is also NVDA. Schreiben. Ich schreibe dir einen Brief. Ich schreibe dir. Na? So. Schreiben. Schreibst du Briefe? इसमें एक्यूजेटिव हुआ कि डाटिव schreibst du Briefe ब्रीफ है का मतलब होता है लेटर्स schreibst du Briefe NVDA. एक्यूजेटिव हुआ इसमें schreiben तो NVDA वाली वर्ब है लेकिन मैंने तो केवल थिंग का ही इसमें मेंशन किया है schreibst du mir Briefe NVDA आपकी बात इसमें मैंने ब्रीफ है भी बोला और नियर भी बोला Hast du Zeit am Wochenende? Hast du Zeit? Accusative. Haben Verb ली मैंने. Hast du Zeit? Yeah. So verb को देख के आपको पता करना पड़ेगा कि ये verb accusative है, dative है या nominative है. Accordingly, अगर accusative और dative होगी तो object आएगा. नहीं तो object का काम ही नहीं है. Clear? ओके सो ये हम लोग सेंटेंस मेकिंग का बेसिक जो फर्स्ट रूल है सेंटेंस मेकिंग
नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ये वाला किया हमने। अभी हम लोग काइन और निष्ठ पे और बात करेंगे आज, है ना, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस काइन निष्ठ, इससे रिलेटेड भी डाउट्स कल डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको मैं कुछ सेंटेंस दे दूंगा अभी, काइन निष्ठ बोलते ही कुछ 10-5 सेंटेंस दूंगा, यू हैव टू ट्रांसलेट एट होम। काइन और निष्ठ, काइन निष्ठ, both the words kind and nicht both we use to negate something, कोई चीज को मना करना, to negate आप कह सकते हो, मना करने के लिए। वैसे केवल हाँ ना इतना ही बोलना हो तो मना 9 से भी कर सकते हैं, 9 comes to, आ रहे हो, 9 हो गया। लेकिन सेंटेंस में आप पूरा मना करो तो काइन या निष्ठ, तो या और 9 में तो केवल हाँ या ना इतना ही बोलना हो तब तो यहाँ पे काम खत्म है, 9 से काम हो गया। लेकिन सेंटेंस में हम लोग मना करते हैं तो काइन और निष्ठ से, टू नेगेट। बट इफ यू नेगेट, सपोज मेरे को ये बोलना है I don't have your pen, निष्ठ आएगा कि काइन? I don't have your pen, पेन को मना कर रहा हूं, तुम्हारा पेन मेरे पास नहीं है, निष्ठ आएगा, पर्टिकुलर। ओके, अगर मैं बोलूं मैं घर नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस, निष्ठ या काइन? घर नहीं जा रहा, काइन। ओके, अगर मैं बोलूं ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, निष्ठ ना, ओके जी। सो नेगेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इफ यू नेगेट वर्ब निष्ठ, if you negate adverb nicht, if you negate adjective nicht, if you negate definite noun nicht, इन 4 चीजों में हमको nicht बोलना है। जब भी हम कोई भी वर्ब, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, आई एम कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट बीटिंग, आई एम नॉट बैटिंग, कोई भी चीज, कोई एक्शन मना करना है आपको, वर्ब का मतलब है कोई भी एक्शन। इफ यू डिनाई सम एक्शन यू विल यूज nicht, ich koche nicht, ich gehe nicht, ich sage dir nicht, ich bringe nicht, ich schreibe nicht। सो एक्शन में मना करना है तो nicht। एडवर्ब उसको बोलते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताए, क्वालिटी ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल एयर गेट स्लेश्ड, अरे उसको तो चलना ही नहीं आता, देखो कैसे चल रहा है, हा? अच्छे से नहीं चल रहा है। या फिर एयर गेट जुपर, बहुत बढ़िया चलता है वो तो, क्या चाल है उसकी, हाँ। सो एयर गेट लंगजाम, लंगजाम का मतलब है धीरे धीरे, एयर गेट लंगजाम, तो ये जो लंगजाम वर्ड है ये एक्चुअली एडवर्ब है, एयर गेट लंगजाम। ये तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूं, एयर गेट लंगजाम, ये लंगजाम जो है वो एडवर्ब है, वो चलने की विशेषता है, बता रहा है वो आदमी ढीला है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, चलता धीरे है। एयर गेट लंगजाम, वो धीरे धीरे चलता है। फिर मैंने कहा अच्छा धीरे चलता है, देखता हूँ यार सही तो चल रहा है। एयर गेट nicht langsam, वो धीरे नहीं चलता, आपने मना किया, आपने एडवर्ब को मना किया तो होगा एयर गेट nicht langsam, वो जा ही नहीं रहा, एयर गेट nicht, वो नहीं जाता, जा ही नहीं रहा, एयर गेट nicht, जाना आना खाना पीना कूटना कुट जाना, जो भी वर्ब है आपने मना किया, अगर किसी भी एक्शन को मना किया तो nicht आएगा। एंड
द पोजीशन ऑफ निष्ठ, इट इज इजियर कि आप दिमाग में फिट कर लो कि थर्ड पोजीशन पे कर देंगे। और भी ऑप्शन बताऊंगा, बट नॉर्मली किसी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता कि भाई मेरे को तो ये झंझट नहीं चाहिए, मुझे एक चीज बताओ, तो वर्ब के बाद में निष्ठ लगा दो। इरगेट निष्ठ, वर्ब के बाद में निष्ठ लगाओ। एडजेक्टिव को मना करोगे तो भी निष्ठ आएगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताती है, एंड एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज नॉट इंटेलिजेंट, श्याम इज निष्ठ इंटेलिजेंट, श्याम इज निष्ठ इंटेलिजेंट, श्याम इज निष्ठ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को मना किया मैंने कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, एडजेक्टिव को मना किया मैंने, श्याम इज निष्ठ इंटेलिजेंट। सो यहां भी देखो वर्ब की पोजीशन सेकंड और निष्ठ की पोजीशन थर्ड। यहां भी वर्ब की पोजीशन आपको हमेशा सेकंड रखनी है। कनेक्टर्स की बात बाद में करेंगे, अदरवाइज आप तो वर्ब की पोजीशन सेकंड रखो। Ihr geht nicht langsam, Sham ist nicht intelligent, तो एडजेक्टिव जहां भी आए, लेकिन निष्ठ जो है वो थर्ड पोजीशन पे रख लो अपने, तो इजी है। देन डेफिनेट नाउन, आई एम नॉट परचेजिंग द बुक, ये बुक मैं नहीं खरीद रहा, सो आई एम नॉट परचेजिंग द बुक बोला मैंने, मतलब स्पेसिफाई किया ना। Ich kaufe nicht das Buch. Ich kaufe nicht. Ich kaufe nicht das Buch. Ich kaufe nicht das Buch. So, हमने तो सिंपल फंडा, नेक्स्ट को थर्ड पोजीशन पे ले आओ, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले आओ। So, to negate verb, adverb, adjective और definite noun, निष्ठ से करेंगे नेगेट। तो काइंड से क्या नेगेट करेंगे भाई, जब ये सब निष्ठ से ही कर देंगे तो काइंड से नेगेट करेंगे हम लोग। काइंड से क्या नेगेट करेंगे, नाउन को नेगेट करेंगे, बट नाउन भी डेफिनेट नहीं होना चाहिए। दिस इज डेफिनेट नाउन। हम काइंड से नाउन को नेगेट करते हैं, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को नहीं, नाउन को नेगेट करेंगे काइंड से, बट दैट शुड नॉट बी डेफिनेट, कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं पेन देना, मैं साइन करना, पेन देना, कुली, मेरे पास नहीं है। ये थोड़ी कहा आपने पार्कर का नहीं है कि लाल नहीं है कि तुम्हारा नहीं है, ऐसे नहीं कहा, आपने जनरल नाउन को मना किया। मतलब नाउन इफ इट इज जनरल, if it is common, not specific, indefinite noun भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, indefinite noun, because ये तो definite हो गया, तो ये indefinite noun, general noun, common noun, तो हम लोग आप बोलते हो शाम का साइड, ये थोड़ी कहते हो शाम को। अगर आप बोलोगे शाम को टाइम नहीं है, तब तो नेक्स्ट आएगा, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया आज शाम को टाइम नहीं है। शाम होते आबन आजो नहीं, आप साइट को मना कर रहे हो तो काइन नहीं आएगा, काइन साइट। अगर स्पेसिफाई कर दिया ich habe am आपने टाइम को मना किया तो काइन साइट आएगा। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, क्या बोलोगे, ich habe kein Geld। अगर मैं बोलूं मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं है, ich habe nicht dein Geld, ich habe nicht dein Geld, तुम्हारा पैसा नहीं है मेरे पास, ich habe nicht। अगर आपको बोलना हो मैं दूध नहीं पीता, I don't drink milk, मैं दूध नहीं पीता, खाएंगे या nicht, खाइन आएगा। दूध, मैंने ये थोड़ी बोला गाय का नहीं पीता, ऊंट का नहीं पीता, हाँ? दूध नहीं पीता, तो दूध कॉमन नाउन है, इस तरीके keine Milch।
ठीक है। जनरल नाउन, मान लो आपने बोला कि कंघी खरीद लो, मैंने कहा मेरे बाल ही नहीं है यार, इशाबा खाई ना हार है, तो मैं कंघी का क्या करूंगा, बाल ही नहीं है मेरे, इशाबा खाई ना हार है, तो इसमें काइन आएगा। आपने बोला 3 4 एक तो है, ich brauche nicht, I don't need, ich brauche nicht, वर्ब को मना किया, I don't need। अगर मैं बोलूं मुझे ये कंघा नहीं चाहिए, I don't need this comb, नेक्स्ट आएगा ना, द बोल दिया मैंने, स्पेसिफाई कर दिया ये वाला कंघा नहीं चाहिए मुझे। कई लोग फोन करके पूछते हैं उधार ले रहे हो क्या पैसे, बैंक वालों के फोन आते हैं कि मैंने मांगा ही नहीं, कह उधार ले लो, तो मैं बोलता हूँ शाबाश, ich brauche nicht, right, ich brauche nicht means I don't need। so एक्शन को मना किया, वर्ब को मना किया, so ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich brauche keinen Kuli। जनरल नाउन को मना करेंगे तो खाइन आएगा, और आपको पता है कि खाइन वगैरह जो भी आएगा वो नाउन से पहले आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इसी का तो आर्टिकल है। पोजीशन की इसकी बात करें तो खाइन खाइन है, खाइन खाइन है, इसकी बाकायदा टेबल है, अगेन द सेम थिंग, काइन काइन है, खाइन खाइन है, खाइनन खाइन है, काइन खाइन है, खाइनम खाइनर खाइनम खाइनन प्लस एन। सो नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। या काइन काइने काइन काइने काइनन काइने काइन काइने काइनम काइनर काइनम काइनन प्लस एन। इसमें हम लोग हर बार वो नॉमिनेटिव है कि अकुजाटिव है कि दाटिव है वो तो देखने से पता चलेगा हमको, राइट। और फर्स्ट लाइन है सब्जेक्ट के लिए, सेकंड एंड थर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए है, और वो वर्ब डिसाइड करेगी या प्रीपोजिशन। बट हम लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग प्रीपोजिशन डिस्कस नहीं करी, तो हम कह रहे हैं वर्ब डिसाइड करेगी। मैं कोई बच्चे की, आप बच्चों की हेल्प करते हो, हमारा भी एक बच्चा है, नहीं 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 मैं किसी बच्चे की हेल्प नहीं करता, आई हेल्प नो बेबी, तो क्या होगा, आई हेल्प नो बेबी, खाइनम बेबी या खाइनम किंग, खाइनम आएगा इस बार क्योंकि हेल्प फन डाटिव है, और डाटिव है तो न्यूट्रल में इस हेल्प है काइनम आ जाएगा, इस हेल्प है काइनम बेबी, आई हेल्प नो बेबी। सो कई लोग इसको ऐसे भी ट्रांसलेट करते हैं कि काइन यूज करेंगे अगर नो या नॉट एनी, नॉट एनी या नो आ रहा है सेंटेंस के बीच में, तो हम लोग जनरली काइन और नोट अगर आ रहा है तो निश्ट, दिस इज नॉट माई पेन, आई हैव नो पेन, नो आ गया, या आई डोंट हैव एनी, डोंट हैव एनी, तो नॉट एनी आए या नो आए तो काइन की तरफ जाना है आपको, और नोट आ रहा है आई एम नॉट हेल्पिंग एनी बेबी, आई डोंट हेल्प एनी, आई डोंट हैव एनी बोलना पड़ेगा ना उसमें। डू नॉट और डज नॉट का अगर आता है तो भी वो नो ये इस पे जाएगा, एनी, नॉट एनी और नो। जनरली कुछ लोग इससे ही समझने की कोशिश करते हैं, बट अपन को तो फंडा तो ये ध्यान रखना है कि वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और डेफिनेट। अगर इसमें 10 बेबी आता तो डेफिनेट आते ही तो नेक्स्ट लगेगा ना, पर्टिकुलर, ये वाला लास्ट में डेफिनेट नाउन अगर आ गया तो नेक्स्ट,
I'm not helping the baby. इस baby की तो मेरे को help करनी नहीं. Das Baby हो जाता तो ich helfe dem Kind. Okay. So, Entschuldigung, wir haben uns verspätet. Okay, Moment. Dem. Moment bitte.